السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے خیریت سے ہوں گے سب۔ تو آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ ہے مشق نمبر 1.3 اور مشق نمبر 1.3 میں دو ٹاپک ہیں جن کو ہم ڈسکس کرنا ہے۔ مشق نمبر 1.3 اور اس کا سوال نمبر 1۔ اور سوال نمبر 1 میں اس میں ہم نے معلوم کرنا ہے کمپلیکس اعداد کا ماڈولس۔ کمپلیکس اعداد کا ماڈولس۔ تو سوال شروع کرنے سے پہلے میں تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل بیان کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ ڈیٹیلز کیا ہے، ماڈولس ہوتا کیا ہے اور اس کو کیسے معلوم کیا جاتا ہے، یہ میں ان بچوں کے لیے کر رہا ہوں جو بچے اس قابل ہیں کہ اس چیز کو سمجھ سکیں، ورنہ ایک شارٹ سا فارمولہ بتا کے بھی کمزور بچے جو ہیں وہ اس کو آسانی سے کر سکتے ہیں۔ تو میں تھوڑی سی ڈیٹیل میں جا کے پھر سوالوں کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیں، یہ ہوتی ہے ہمارے پاس ایک نمبر لائن۔ نمبر لائن یہ چھوٹی کلاسوں میں آپ پڑھتے رہیں۔ اس کے درمیان میں یہ ہو گیا 0، ادھر چلیں تو یہ 1 2 3 4 5، یعنی اگر آپ نمبر لگائیں 1 2 3 4 5 اور ادھر -1 -2 -3 -4 اور -5، -1 -2 -3 -4 اور -5۔ یہ جتنے تک مرضی لگانا چاہیں لگا سکتے ہیں، میں نے صرف اتنے تک لگایا۔ تو اب اگر کوئی ہم سے کہتا ہے نا کہ یہ جو 4 ہے، اس 4 کا ماڈولس، ایسے دو لائنیں لگا دیتے ہیں، اس کو ہم سمپلی ماڈ بھی پڑھ لیتے ہیں اور ماڈولس بھی پڑھتے ہیں۔ 4 کا ماڈولس یعنی ماڈولس آف 4۔ 4 کا ماڈولس کیا ہے؟ اردو میں اس کو کہتے ہیں 4 کی مطلق قیمت کیا ہے۔ اسی ماڈولس کو ہم کیا کہتے ہیں اردو میں؟ مطلق قیمت۔ اور جب ہم اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ کیونکہ پورا لفظ ایسے ہے ماڈولس، تو ہم اس کا یہ صرف پہلے 3 MOD ماڈ، ہم اس کو کیا پڑھیں گے؟ ماڈ، یعنی 4 کا ماڈ۔ تو مطلق قیمت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 4 کا ماڈ یا 4 کے ماڈولس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہندسہ ہے 4، اگر نمبر لائن پہ چلیں تو یہ 0 سے گنتی کرنا شروع کریں تو کون سے نمبر پہ آتے ہیں؟ تو 0 سے گنتی شروع کرنا کریں، یہ پہلے نمبر پہ، یہ دوسرا نمبر، تیسرا نمبر، چوتھا نمبر۔ تو 4 کا ماڈولس اگر ہم لیں گے تو جواب کتنا آئے گا؟ 4، یعنی اس کی مطلق قیمت کتنی ہے؟ 4، یعنی 0 سے گنتی کر کے چلیں تو کون سے نمبر پہ آئے گا؟ چوتھے نمبر پہ۔ تو یہ 4 کا ماڈولس بھی 4 ہے۔ اب اگر آپ کے پاس آ جائے کہ -4 کا ماڈولس یہ کیا ہے، تو پھر وہی اسی طریقے سے آپ نے کرنا ہے کہ -4 کے ماڈولس کا مطلب ہے کہ جو -4 ہے اس رقم میں، اس نمبر لائن پہ، وہ 0 سے اگر ہم چلنا شروع کریں تو کون سے نمبر پہ آئے گا؟ تو اگر ہم 0 سے چلنا شروع کریں تو یہ ہمارا پہلا سٹیپ ہوگا، پہلا قدم ہوگا، یہ دوسرا، یہ تیسرا اور یہ چوتھا، یعنی چوتھا قدم ہمارا کہاں پہ آ لگے گا؟ -4 پہ۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ -4 0 سے چلے تو کتنے نمبر پہ آئے گا؟ چوتھے نمبر پہ، یعنی -4 کی مطلق قیمت بھی کون ہے؟ وہی جمع کا 4۔ تو جمع کا 4، اس جمع کے 4 کی مطلق قیمت بھی 4 اور منفی کے 4 کی مطلق قیمت بھی 4۔ المختصر مطلق قیمت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ عدد یا وہ رقم یا وہ ایک حقیقی ہندسہ جس کی ہم مطلق قیمت نکالنا چاہ رہے ہیں، وہ 0 سے آگے چلے تو کتنے نمبر پہ آئے گا، یعنی 0 سے کتنا دور ہے۔ یہ ایسے یاد کر لے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ تو اس کو ہم کہیں گے اس کی مطلق قیمت۔ اسی طریقے سے اگر ہمارے پاس آ جاتا ہے کوئی غیر حقیقی نمبر یعنی کمپلیکس نمبر، جیسے میں مثال دیتا ہوں 4 جمع 5 ایوٹا، 4 جمع 5 ایوٹا، اور اگر ہم اس کا ماڈولس لینا چاہتے ہیں، یعنی اس کا ماڈولس یا اس کی مطلق قیمت جو ہوگی وہ کس چیز کے برابر ہوگی، تو میں اس سوال کو اسی جگہ پہ روک کے تھوڑا سا اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں۔ کہ اگر فرض کر لیتے ہیں کہ یہ جو 4 جمع 5 ایوٹا ہے،
ये ऐसे नहीं है, इसको मैं लिख देता हूं एक्स जमा आयोटा वाई। ये एक मुतलक नंबर है जिसका हकीकी हिस्सा कौन है, एक्स है, और जिसका इमेजिनरी हिस्सा कौन है, वाई है। अब ये देखना है कि ये नुक्ता जिसकी एक कीमत एक्स है दूसरी कीमत वाई है, ये जीरो से कितने फासले पे होगा। तो इसके लिए हम ऐसा करते हैं, क्योंकि एक्स और वाई दो कीमतें मौजूद है, तो हम एक ऐसे कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री में हमने पढ़े हैं, कारतीसी मस्तवी भी इसको कहते हैं उर्दू में, आप इसको बना सकते हैं ऐसे। और ये छोटी क्लासों में या 9th क्लास में भी हमने पढ़ी थी, अगर आपको याद हो तो 5वें चैप्टर के अंदर। ये इसका एक्स एक्सिस होता है और ये इसका वाई एक्सिस होता है। अगर एक नुक्ता हमारे पास इस जगह पे मौजूद है, ये है वो नुक्ता जिसकी कीमत है एक्स जमा आयोटा वाई, यानी कोई ना कोई कीमत एक्स की भी है, ये बिल्कुल इस जगह पे तो नहीं है, इधर चल के एक्स की भी कोई ना कोई कीमत होगी, यानी इतने तक। ये एक्स इसकी सीध में देखें तो इतने तक आ रहा है, यानी ये है इसकी एक्स की कीमत ये, और इस नुक्ते की जो वाई की कीमत है कुछ ना कुछ तो ये इस लाइन से वाई से जीरो से, ये जीरो जीरो होता है, जीरो से कुछ ना कुछ तो ऊपर भी होगा। इस नुक्ते को अगर देखें तो इस जगह तक इसकी ऊंचाई है, यानी ये इसकी कीमत आ रही है किसकी, वाई की कीमत, और वो कीमत नीचे जो आ रही थी वो कीमत थी एक्स की कीमत। तो इस तरीके से अब ये इस नुक्ते की हाइट कितनी है, वाई के बराबर, और इस नुक्ते की ये जो चौड़ाई है ये कितनी है, जीरो से कितना दूर है, वो है एक्स के बराबर। लेकिन हमने क्योंकि मुतलक कीमत निकालनी है, तो मुतलक कीमत निकालने के लिए हमने तो जीरो से उस नुक्ते का डायरेक्ट फासला लेना होता है कि ये नुक्ता जीरो से कितना दूर है, ये चीज हमने मालूम करनी, इस जगह से लेकर इस जगह तक। अब अगर इस जगह तक चले तो आप इसको मैं थोड़ा सा ऐसे डॉटेड लाइन मिला देता हूँ इस जगह पे ऐसे। अगर ये इसकी हाइट है कितनी y, तो ये भी तो वही y के बराबर है ना ये फासला, तो मैं y को इस जगह पे शिफ्ट कर देता हूँ कि इसकी हाइट कितनी है y और इसकी चौड़ाई कितनी है x। अब आपको देखने में नजर आ रहा होगा कि ये हमारे पास बन गई एक कायमा जाविया मुसल्लस। कौन सी चीज, कायमा जाविया मुसल्लस। और कायमा जाविया मुसल्लस में देखें तो ये x कौन है, x को हम कहते हैं ये है कायमा जाविया मुसल्लस का कायदा। कायदा कितना आ गया x, और y को देखें तो y है इस कायमा जाविया मुसल्लस का अमूद, ये आ गया अमूद। और हमने असल में ये चीज मालूम करनी, यहां से लेकर यहां तक ये जो फासला है ना, ये कितना फासला बन रहा है, इस फासले को हमने मालूम करना है, इसको कहते हैं ये है वत्तर। और वत्तर की कीमत हमारे पास नहीं है, वत्तर हमने मालूम करना है। जितनी वत्तर की कीमत आएगी असल में वही इस नुक्ते की मुतलक कीमत होगी। मुतलक कीमत का मतलब क्या है कि ये जीरो से कितना दूर है। अगर जीरो से डायरेक्ट इस नुक्ते की तरफ चले तो कितना फासला बनता है, कितना दूर है, कितने नंबर पे आएगा, तो ये इसकी मुतलक कीमत। यानी अगर इस मुसल्लस के हिसाब से देखें तो हमने कौन सी चीज मालूम करनी है, वत्तर। तो जो वत्तर का जवाब आएगा वही होगी इस हमारे कम्प्लेक्स नंबर की मुतलक कीमत। तो अब वत्तर निकालने के लिए हमारे पास मौजूद होता है मसला फिसागोरस, और मसला फिसागोरस आपको याद है, बहुत ही आसान है, छोटी क्लासों में पढ़ते आ रहे। वत्तर का मुरब्बा बराबर होता है कायदा का मुरब्बा जमा अमूद का मुरब्बा। हमने मालूम कौन सी चीज करनी है, वत्तर। तो ये वत्तर के ऊपर जो स्क्वायर आ गया, स्क्वायर को खत्म करना है। स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम इस साइड पे भी जजर ले लेते हैं, और स्क्वायर को अगर खत्म इधर जजर लिया तो दूसरी साइड पे भी फिर जजर लेना पड़ेगा। अब इसका तो जजर से मुरब्बा हो जाएगा कैंसल, दूसरी साइड पे जजर से मुरब्बा कैंसल नहीं हो सकता, क्योंकि दरमियान में जमा या मनफी मौजूद हो तो जजर और मुरब्बा आपस में कैंसल नहीं होते। तो अब इस साइड पे आपके पास बच गया सिर्फ और सिर्फ कौन, वत्तर, और दूसरी साइड पे कौन है, कायदा का मुरब्बा। कायदा कौन है, एक्स, तो ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर जमा अमूद कौन है, अमूद है वाई, तो ये आ जाएगा वाई का स्क्वायर और इसके ऊपर जजर। यानी अगर हम वत्तर की कीमत निकालना चाहते हैं तो एक्स का भी स्क्वायर ले लें, वाई का भी स्क्वायर ले लें, फिर दोनों को जमा कर लें, जमा करने के बाद इनका जजर ले लें, तो ये हमारे पास वत्तर की कीमत आ जाएगी। और जो वत्तर की कीमत होगी वही होगा हमारे पास एक्स जमा आयोटा वाई का मॉडुलस, यानी इसकी मुतलक कीमत। थोड़ा इधर करके लिख देते हैं, एक्स जमा आयोटा वाई, इसका मॉडुलस अगर निकालना चाहते हैं तो ये बराबर होगा एक्स का स्क्वायर जमा वाई का स्क्वायर और सारे का जजर।
इस तरीके से। तो ये है वो फार्मूला जिससे हम किसी कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकाल सकते हैं। अब इसमें x कौन होगा उस कम्प्लेक्स नंबर का हकीकी हिस्सा, और y कौन होगा उस कम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी हिस्सा, यानी आयोटा के साथ जो अदद होगा, आयोटा साथ नहीं आएगा, आयोटा के साथ वाला जो अदद होगा, जो हिस्सा होगा वो इस जगह पे आ जाएगा। उसका भी स्क्वायर लेंगे, हकीकी हिस्से का भी स्क्वायर लेंगे, तो स्क्वायर लेने के बाद जज़र लेंगे तो जो जवाब आएगा वो ही होगी इसकी मुतलक कीमत, इसका मॉडुलस या इसका मॉड। तो ये समझ आ गई। अब चलते हैं जी अपने मशक के सवालों की तरफ। तो ये हमारे पास आगे मशक नंबर 1/3 के सवाल नंबर 1 के पहली 4 जुज़ हैं 4। तो हम पहली को स्टार्ट करते हैं। वो कहते हैं इनका मॉडुलस मालूम करें। 4 जमा 3 आयोटा ये सवाल है, इसका हमने मॉडुलस मालूम करना है, यानी 4 जमा 3 आयोटा का मॉडुलस ये हमने मालूम करना है। तो अब हल करने के लिए वो फार्मूला हम पढ़ चुके हैं। तो अब आपने इसका जब हल करना है तो कैसे हल करना है, इस तरीके से 4 जमा 3 आयोटा इसका मॉड बराबर होगा किस चीज के, हकीकी हिस्सा कौन है 4, यानी 4 का स्क्वायर जमा इमेजिनरी हिस्सा कौन है 3, तो 3 का स्क्वायर और सारे के ऊपर जज़र। इस तरीके से हल करें। 4 का स्क्वायर लेंगे तो 4 4 16, 3 का स्क्वायर लेंगे तो 3 3 9 और ऊपर सारे के ऊपर जज़र। 16 जमा 9 करेंगे तो 25, 25 के ऊपर जज़र और 25 का जज़र लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5। तो ये हमारे पास 4 जमा 3 आयोटा इसका मॉडुलस कितना आ गया, जमा का 5। ये आपके सवाल का जवाब है। कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान है। तो अब हम चलते हैं जी सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 में क्या है, मॉड मालूम करना है। -5 -4 आयोटा इसका मॉड ये हमने मालूम करना है। कैसे करेंगे, -5 -4 आयोटा इसका मॉड बराबर होगा किस चीज के, -5 का स्क्वायर जमा -4 का स्क्वायर और सारे के ऊपर जज़र। ऐसे तो ये आपके पास बनेगा कितना, -5 का स्क्वायर लेंगे तो 5 5 25 और -, जमा तो जमा का ही 25 ही आएगा, जमा का 25, और इस 4 का स्क्वायर लेंगे तो जमा का 16 और सारे के ऊपर जज़र मौजूद है, इस तरीके से हम लिख देंगे जज़र। 16 और 25 को जमा करें, 6 और 5 11, 2 और 1 3 और 1 हासिल का 4, तो 41 का जज़र। अब 41 का हम जज़र नहीं ले सकते तो ये इसका जवाब होगा। -5 -4 आयोटा इसका मॉड बराबर आ गया 41 का जज़र। अब चलते हैं जी सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 में क्या है कि 3/5 -4/5 और इनके साथ है आयोटा, इसका हमने मॉडुलस मॉड मालूम करना। कैसे करेंगे, 3/5 -4/5 आयोटा इनका मॉडुलस बराबर होगा हकीकी हिस्से का स्क्वायर, यानी 3/5 इस सारे का स्क्वायर जमा इमेजिनरी हिस्से का स्क्वायर, यानी -4/5 इसका भी स्क्वायर और सारे के ऊपर आ जाएगा जज़र। ये आ गया। तो इसका स्क्वायर लें, 3 का मुरब्बा लेंगे तो ये आ जाएगा 9, 5 का मुरब्बा लेंगे तो ये आ जाएगा 25, जमा 4 का मुरब्बा लेंगे तो 16 और 5 का मुरब्बा 25 और सारे के ऊपर ऐसे जज़र। दोनों का बट्टा 25 है, 25 से एक दफ़ा लिख दे, ऊपर आ जाएगा 9 जमा 16, तो नीचे है 25, 9 जमा 16 करें तो ये भी 25 बनते हैं, 25/25 जज़र। 25 से 25 हो जाएगा कैंसर, जज़र के अंदर आ जाएगा सिर्फ 1 और 1 का जब जज़र लेंगे तो जवाब आ जाएगा 1। तो ये आ गया हमारे पास 3/5 -4/5 आयोटा और इसका मॉड, ये बराबर आ गया जी जमा का 1। अब
چوتھے اور آخری جز کی طرف چلتے ہیں. اس میں دیکھیں -2 کا جذر، -3 کا جذر اور ایوٹا، اس کا ہم نے ماڈولس معلوم کرنا. کیسے معلوم کریں گے جی؟ -2 کا جذر، -3 کا جذر، ایوٹا، اس کا ماڈولس برابر ہوگا حقیقی حصے کا سکیئر، یعنی -2 کا جذر اس کا لیں گے سکیئر، حقیقی حصے کا سکیئر جمع امیجنری حصے کا سکیئر، یعنی -3 کا جذر اور اوپر سکیئر اور سارے کے اوپر جذر یعنی سکیئر ہوگا. تو کیسے بنے گا؟ منفی کا جب مربع لیتے ہیں تو جواب جمع آتا ہے، اور اس کا جب مربع لیں گے تو جذر سے مربع کینسل، تو یہ بچ جائے گا جمع کا 2، اور یہ آپ کے پاس کینسل ہو کے بچ جائے گا جمع کا 3، اور جب کون ہے جذر 2 جمع 3 کریں گے تو 5 کا جذر. 5 کا جذر تو لے نہیں سکتے، لہذا -2 کا جذر، -3 کا جذر، ایوٹا، اس سارے رقم کو اگر ماڈولس لیں گے تو برابر آ جائے گا 5 کا جذر. تو یہ آپ کا سوال حل ہو گیا، یہ اس کا جواب ہے. یہ تھا جی مشق نمبر 1.3 کا سوال نمبر 1 ماڈولس کے متعلق. وہ امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ حافظ.